Morning, class 7th students. So now today we start our chapter 21, sea movements. Okay, as you all know that our 20 chapters are completed, and we already do the exercise and question answers of our last chapters. Okay, I hope you just complete your lesson 20 in your notebook. And now today we start our lesson 21, sea movements. Okay, the movements which are happen in sea is known as sea movements, है ना. जो movements, जो गतिविधियाँ sea में यानी समुद्र में होती हैं उन्हें हम sea movements कहते हैं. Okay, so here you see that you have seen lakes, ponds or a flowing river. You just see lake, pond and flowing rivers. Okay, आपने तालाब, नदियाँ और झीलें देखी होंगी बहते हुए. Okay, and you notice that there is a movement on the surface of water. That means you notice that there is a movement on surface of water. Water की surface पे कुछ movements होते रहते हैं. Okay, and in the same way the water of the seas and oceans to have movements. And just like the rivers, lakes and ponds, the movements are happen in the sea and ocean also. Okay, जिस तरह से rivers में, lakes में, oceans में, rivers में, lakes में, ponds में movements होते हैं, लहरें ऊपर नीचे होती हैं, water bodies ये जो हैं इनमें movements होते हैं. Same as movements are happen on the oceans and seas also. इसी तरह के movements जो हैं वो ocean और sea मतलब समुद्र और महासागर में भी होते हैं. Okay, there are 3 types of movements in sea water. Sea water जो है आपका समुद्री जल जो है उसमें 3 तरह के movements होते हैं, 3 तरह की गतिविधियाँ होती हैं. And these are known as, first one is waves, second is currents and third is tides. Okay, waves, currents and tides. So first we have to learn or we have to read about waves, that what are waves. So here's the water on the surface of the sea moves ups and downs due to the effects of winds. Okay, due to the effects of winds, due to the winds, the water of the surface in water bodies flow ups and downs or move ups and downs. That means कि winds के वजह से जो हवाएं हैं उनकी वजह से जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से जो पानी की सतह है ना, पानी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं हमारी उन पे जो वाटर की लेयर है, जो पानी की सतह है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ड्यू टू विंड्स होते हैं. ओके, ड्यू टू द विंड्स ये मूवमेंट्स होते हैं जो कि अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की तरफ होते हैं. दिस इज़ नोन एज वेव्स. इन्हें हम वेव्स कहते हैं या लहरें कहते हैं. वेव्स यानी लहरें. आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना. इवन व्हेन यू वेंट टू सी वर्ल्ड और ऑल, जब भी आप ये सी वर्ल्ड या वाटर पार्क्स वगैरह भी जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक पोर्शन होता है, एक साइड होता है जो वेव सेक्शन या वेव साइड होता है. दैट मीन्स कि वहाँ पे फ्लो और विंड्स के अकॉर्डिंग वाटर को फ्लो किया जाता है और वेव्स में फ्लो होता है वाटर. अप्स एंड डाउन्स की जो लेयर्स होती हैं वाटर की उसके थ्रू वाटर फ्लो होता है. सो normally the water on the surface of the sea moves ups and downs through the wind. Okay, and this is known as winds. This is known as waves actually. Okay, now it seems as if the waves push one another to move forward but are actually total moving up and down. जब हम इसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक वेव जो है वो दूसरी वेव को पुश कर रही है, धक्का दे रही है, बट ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली वो एयर प्रेशर की वजह से सारी वेव्स जो हैं, सारा जो वाटर है एक साथ अप और डाउन मूव होता है और वो मूवमेंट जो है वो हमें वेव्स के रूप में दिखाई देता है. ओके, नाउ ऑडली नियर द शोर इट मूव्स फॉरवर्ड एंड एंड्स. ओके, जो नियर द शोर यानी किनारे पर जो है, पानी के किनारे पर, नदियों के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो ये वेव्स हैं ये अप डाउन करती हुई हमें नज़र आती हैं. ओके, और लास्ट में आके ये एंड हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द वेव्स. वेव्स के जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं. द वन दैट राइजेज अप इज कॉल्ड crest and the lower part is called trench. Okay,
टू पार्ट्स ऑफ द वेव्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द क्रेच एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रेंच. Got it? So these are the two parts of the waves which is known as the surface of the water which is flow from up and down side. Okay. Now the following are the causes of the occurrence of the waves. Waves की occurrence, that means waves के बनने के या waves के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं. Okay. So here we learn about the reasons. The wind flowing over the sea causes ripples in the water and it moves up and down. विंड्स जो है वो ब्लो करती है समुद्र के ऊपर. ओके. एंड विंड्स जब ब्लो करती है, विंड्स जब बहती है समुद्र के ऊपर, तो उसके प्रेशर की वजह से जो वेव्स हैं वाटर की, जो वाटर की लेयर है, सरफेस है, वो अप और डाउन मूवमेंट में ब्लो करती है. ओके. हाउ बिग द वेव्स बिकम डिपेंड्स अपॉन द हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड. दैट मीन्स वेव्स कितनी बड़ी है या कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये डिपेंड करता है कि हवा जो है उसका प्रेशर कितना तेज़ है, कितना स्ट्रॉन्ग है. गॉट इट. नाउ समटाइम्स ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड टेक्टोनिक मूवमेंट्स, बिग वेव्स अकर विथ आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. ओके. कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, ओके, द वॉल्केनिक इरप्शंस, दैट मीन्स द पानी में जो अर्थक्वेक यानी भूकंप का आ जाना, या फिर वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी का फटना. ओके. या फिर इस तरह से सुनामी एंड ऑल, जो आपके डिज़ास्टर्स होते हैं या नेचुरल जो कहना चाहिए कि घटनाएं होती हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके थ्रू भी कभी कभी क्या होती हैं, ये जो वेव्स हैं ये बनती हैं. और ये जो वेव्स होती हैं ये काफ़ी प्रेशर में होती हैं, बिकॉज ये ड्यू टू द डिस्ट्रक्शंस उत्पन्न होती हैं. और ये वेव्स भी खुद भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती हैं. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी जो आया था, आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा कि ड्यू टू द सुनामी देयर आर सो मच पीपल्स हैव डाइड. ओके. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटीज़, destruction of the properties, all are happened due to the tsunami waves and all. Okay. So these are the waves which are happened due to the earthquake or the volcanic eruption. Got it? Now here's tsunami is a Japanese word. Okay. Tsunami, as I told you, these waves which are due to happen due to the occur of volcanic eruption or the earthquake, these are known as the tsunami waves. Tsunami is a Japanese word. We cannot forget the destruction caused by the tsunami. हम सुनामी के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसे नहीं भूल सकते हैं. ओके. विच originated in the Indian Ocean due to earthquake in December 2004. ओके. अर्थक्वेक की वजह से ये ओशन में, महासागर में, ड्यू टू दिसंबर 2004 में अर्थक्वेक के कारण ही ये जो डिस्ट्रक्शन है, सुनामी वेव्स हैं, ये उत्पन्न हुई थी और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. So here's today we discuss about the waves which are the movement of sea and ocean. Okay, as you know that I explain you that the movement which are happened in the surface of the water bodies is known as the sea movements. Okay, and these sea movements are the movements are three types. These are waves, currents and tides, and normally the waves are known as the water on the surface of the sea moves ups and down due to the winds, and these ups and downs or the movement is simply known as waves. Okay. And it seems that the waves push one wave to another, but it is equally or simultaneously up and down by the pressure of wind. Got it? And there are two parts of the waves. First one is crest and second is the lower part which is called trench. Okay. सो द वन राइजेज अप, जो ऊपर उठता हुआ पार्ट दिखता है वो क्रेच होता है, और जो नीचे ढलता हुआ पार्ट है वो ट्रेंच होता है. ओके. एंड मेन रीजंस फॉर वेव ऑकरिंग, और वेव्स के उत्पन्न होने के मेन कारण क्या हैं? ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ द विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द ओवर ऑफ द सीज वाटर. क्या होता है, पानी की सतह के ऊपर जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं, बहती हैं. ओके. और इसकी वजह से पानी जो है वो अप और डाउन होता है और ये वेव्स में कन्वर्ट होता है. और वेव्स उसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो प्रेशराइज एयर है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होती है. ओके. नाउ समटाइम्स ड्यू टू द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस,
जो होते हैं उनकी वजह से भी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, बट ये वेव्स जो होती हैं ये डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं और इस तरह की वेव्स को सुनामी कहा जाता है। गॉट इट? और ये सुनामी वेव्स जो हैं, ये सुनामी जो वर्ड है जैपनीज वर्ड है, और इन 2004 दिसंबर में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी वेव्स क्रिएट हुए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था इवन हमारे इंडिया में भी। Okay students, so today just we learn about waves, and in our next video we will discuss about the next movement of the sea, the currents. Okay.